پتہ ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا، تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو اتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل قاری غلمان سمبھلی پر۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ پر حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب شاہی امام پنجاب کا ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے میں بھی سنتا ہوں اور آپ بھی سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مختصر آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا فرمایا، جو انقلابی نظام ہم کو عطا فرمایا، جو پوری کائنات میں آج سب سے بڑے مذہب کی شکل میں جانا جاتا ہے، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس اس کی نقل بھی نہیں رہی۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، اور عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ سبحان اللہ۔ آئے کیوں ہے دنیا میں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز کے کیا معنی؟ دین کیا ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں۔ اب تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو تو جنت میں جائے گا، نیچا ہو تو جہنم میں چلا جائے گا، مونچھیں لمبی ہو تو حرام ہے، چھوٹی ہو تو حلال ہے، نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے، ناپ پہ باندھ لی تو جائز ہے۔ سوائے فتووں کے ان ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری شے بچی نہیں۔ اور فتوے بھی کس کے لیے چاہیے؟ فتویٰ اپنے لیے نہیں چاہیے ان کو۔ عبد الرحمن کو اپنے لیے فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا، نہیں 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 نہیں۔ اس کو فتویٰ اپنے سکے بھائی کی مخالفت میں چاہیے، اس کو اپنے پڑوسی کی مخالفت میں فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے شریکے کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے۔ یہ اس اسلام کو کوسوں دور چھوڑایا جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس اسلام کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے اندر آ گیا، جس نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا، وہ عزت دار ہو گیا۔ اللہ نے کہا وہ عظمت والا ہے، وہ جان و جلال والا ہے، وہ شہنشاہ والا ہے۔ اور جس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عزتیں عطا کر دی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھوکرے بھی کھاتا ہو، ایک بندہ تھاں تھاں پہ ذلیل بھی ہوتا ہو، جگہ جگہ پہ گرتا پڑتا بھی ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو؟ اس کا مطلب اس کا رونگ نمبر نہیں ملا، تاریں ہی غلط جوڑ رکھی اس نے۔ یہ قرآن کو مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی بجائے ان سے سر پہ ہاتھ پھروانے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی میں پھونک مروانے کی بات کرتا ہے۔ یہ صحیح دکان پہ جا کے غلط سودا خریدنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے بولے کہ 1 کلو چینی دے دو، 1 کلو دال دے دو، تو وہاں کھڑا ہوا ورکر بھی کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں پیٹرول ملتا ہے۔ یہ خانقاہوں میں جاتا ہے، میرے لیے کاروبار کے لیے دعا کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کر دو، میرے داماد کے لیے دعا کر دو، میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو، میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو۔ یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ اس کام کے لیے بنے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دے دے، تم گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرتے ہو۔ تم صحیح دکان پہ جا کے جب تک غلط سامان مانگتے رہو گے کبھی گھر کے اندر صحیح چیز پہنچے گی؟
हमें वो बातें नहीं करनी आती जो आपको लज्जत दे सकें, वो लफ्ज हमें नहीं आते जो आपकी जेब में से 500-500 रुपए निकलवा दें। हमें पता है कौन को मर्ज लग गया बुज़दिली का, कौन को मर्ज लग गया निफाक का, कौन को मर्ज लग गया खुदगर्जी का, कौन को मर्ज लग गया एक दूसरे की दुश्मनी का। तो मैं तुम्हें कहता रहूं कि इतना तस्बीह पढ़ो, इतनी नेकियां मिल जाएंगी। कौन कहता है कि इनको नेकियां मिल जाएंगी? किस किताब में लिखा है कि इनको नेकियां मिल सकती हैं? कुरान पाक में साफ कहा कि मुनाफिकों के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम में, दोगलों के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम में। जो बाहर सूदखोर है मस्जिद में नमाजी, बाहर अपने भाई का दुश्मन है मस्जिद में नमाजी, बाहर बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है मस्जिद में नमाजी, इसको यही पता नहीं कि नमाज क्यों फर्ज की गई। जिसको ये पता ना हो कि नमाज क्यों फर्ज की गई, जिसे ये पता ना हो कि मस्जिद क्यों बनाई गई, वो मस्जिद का प्रधान बना फिरता है। तो इनकी अगर छतरौल नहीं होगी तो फिर और किसकी होगी? मैं बागपत गया, कल भी मैंने पटियाला में एक किस्सा सुनाया, आप भी सुन लो। रात को बहुत सारे लोग फुर्सत में होते हैं। किसी की शादी में गया था, वहां से निकला, आज से 2-3 साल पहले की बात बताता हूँ। वहां से जब निकला, मुझे जाना था सहारनपुर बेहट रोड पे भी एक और शादी थी, वहां भी जाना जरूरी था। तो जोहर की नमाज जिस मस्जिद में पढ़ी है, तो ये शर्म की बात, लेकिन मैंने अब ये फैसला किया कि जब तक इस मरीज को ये नहीं ना बताऊंगा कि मर्ज क्या लगा हुआ है, तुझे इनका इलाज नहीं होना। जब तक औलाद के गुनाह पे पर्दे डालते रहोगे, इनको उसने सुधरना नहीं है। तो रास्ते में मैं एक जगह नमाज के लिए रुका, मेरी अहलिया बच्चे सब साथ में थे। तो इन अहलकारों को जो साथ में, इनको देख के ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो उनको पता लगा कि पंजाब के शाही इमाम साहब का बेटा आया हुआ है यहाँ। उस वक्त मैं इमाम नहीं बना हुआ था, वालिद साहब जिंदा थे रहमतुल्लाह अलैह, मैं इस जिम्मेदारी पे नहीं था। तो कई 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। मैं मस्जिद का नाम भी नहीं बताता तुम्हें, हाईवे पे है, शामली रोड पे। और मुझे कहने लगा, जी हजरत जी कुछ बता जाओ, जो हमारे यहाँ का रवाज है कि जी हजरत जी आए पाए, ये लेट ही हो जाए रात को, बस हमारे घर आ जाओ। अजी कहते हजरत कुछ बता जाओ। मैं बता देते हैं, हमारा काम यही बताना ही है, अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया है। तो अंदर बैठ गए, उन्होंने सोचा 2-4 तस्बीहां बताएगा, कोई ऐसा नुस्खा बता देगा, बस जाके फूंक मारनी है, घर में दौलत आने लगेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि इस्तिंजे खाने में अभी मैं गया था, बेइंतहा गंदा है, इसमें हजारों बीड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये सरकार ने कहा है उत्तर प्रदेश की कि मस्जिद में गंद डाल के रखो। ये जो कुरान पाक पे इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, ये जो मस्जिद की चटाई भी तुम सीधी नहीं कर सकते, हालत बुरी है। ये किसी हुकूमत ने तुम्हें कहा कि तुम मस्जिदों की एहतराम को अपने हाथों से पामाल करते फिरो। मगर तुम्हारे चतरोल नहीं फिरना, फिर और फिरना किसके? इतनी बेहुरमती मसाजिद की, कुरान की, बिल्कुल निकाल के जिंदगी से बाहर फेंक दिया। मस्जिद का काम बस इस्तिंजा करने जाएंगे, नहाने के लिए जाएंगे, नमाज पढ़ ली, उसके अलावा कोई काम नहीं है जी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में अब चले जाओ, पूछो मदीना यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर कहां देते हैं, पूछो किसी मौलवी से जाके। मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर कहां देते हैं? उनके मेडिकल टेस्ट कहां होते हैं? मदीना मुनव्वरा में किसी को कोई परेशानी आ जाए, वो कहां जाता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में पंचायतें होती हैं बैठ के कि आओ हम बताते हैं कैसा फैसा होगा ताकि दीन के मुताबिक हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों की कफालत होती है कि हम बताएंगे किस गरीब को क्या देना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में मजलूमों का साथ देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के साथ जाते हैं। तुमने क्या समझा कि मस्जिद 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए? बड़े बड़े अल्लाह वालों से पूछता हूं मैं बार बार,
किस बात का रोना है कि जी हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इक़्तिदार में हिस्सेदारी नहीं है। मैं इनसे बार बार ये पूछता हूँ, आज भी बहुत सारे उलमा आए थे दोपहर लुधियाना मिलने, तो मैंने उनसे भी पूछा नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या कोई बंदा बता सकता है 2 लफ्जों में नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में है, और हम मौलवियों ने, इस मुल्क के मौलवियों ने पिछले 75 साल में मुसलमानों को यह समझाया कि ये कुरान चौधरी साहब के मरने पे पढ़ने के लिए है। ये तुम्हारी दुकान जब खोलनी है तो वहां खत्म देने के लिए है। ये तुम्हारी बेटी की जब शादी होगी तब इसका खत्म देना है। और ये भी कहा साथ में हमने कि बिल्कुल तुम इसको तर्जमा नहीं पढ़ सकते, गुमराह हो जाओगे, नौज़बिल्लाह। तुम इस काबिल नहीं होगे इसको पढ़ो, ना तुम इसका तर्जमा पढ़ सकते हो ना तफसीर पढ़ सकते हो। हम खुद तुम्हें बता देंगे, तुम बस तिलावत करो और बढ़िया रेशमी गिलाफ ले आओ, कोई बढ़िया खरीद के इसको उसमें पैक करके रखो। मैं पूछता हूं कि अच्छा कलाम कौन करता है दुनिया में? सबसे अच्छा कौन कलाम कर सकता है? इमाम बुखारी से पूछो सबसे अच्छा कलाम किसका है, वो कहते हैं कलामुल्लाह है, मतलब अल्लाह का कलाम है। अच्छा जी, अल्लाह का कलाम सबसे अच्छा है? अल्लाह कैसे बोलते हैं? मतलब कुरान में बोलते हैं, पढ़ो। ओहो, अच्छा ये वो वाला कुरान है जो हमने बंद करके रखा है। मुझे बता दो, अच्छे अच्छे मौलवी को बताओ कितनों ने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी? कितनी मस्जिदें ऐसी जहां कुरान पाक की तफसीर होती? तो इसको बंद करो, ताकि अगर ये खुल गई फिर तो सारा सिस्टम बंद है, बस खत्म है मामला हमारा भी। फिर ये ठीक है, गले में फूंक डलवाओ, सिर पे हमसे हाथ फिराओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी अपने गज हो, जापा भी अपने वो भी की करन। 2500 रुपये महीना मौलवी नूं देना है। अगला कहता ठीक है, हफ्ते के बाद एक चौधरी मर जाए, कुछ ना कुछ 10-15 हज़ार का है। इनको घी असली चाहिए, दूध असली चाहिए, कपड़ा ब्रांडेड चाहिए, मौलवी अच्छा नहीं चाहिए। नाजरा ही पकड़ लाओ, बस नमाज पढ़ा दे, आयकर 20,000 तनख्वाह दे देंगे, नहीं जान ना निकल जाएगी इनकी। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। फिर रोते फिर रहे जी हमारी सरकार नहीं सुन रही। सरकार तो तब सुनेगी ना जब तुम मदीने वाली सरकार की सुनोगे। ऐसी ऐसी बातें होती, मैं जाता हूं अक्सर जलसों में, मैं सुनता हूं ऐसी ऐसी बातें करते जिनका जमीन और आसमान के बीच में बात है। कुछ लेना देना नहीं मुसलमानों से। हजारों जलसे हो रहे हैं शाबान में, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। ना तुम ये बताते हो कि मुसलमानों के मसाइल क्या है, ना ये बताते हो मुसलमानों को बीमारी क्या है, ना ये बताते हो कि इस बीमारी का हल क्या है। मैंने कईयों को पूछा नमाज क्यों पढ़ते? अच्छे आलिम थे, एक मेरे से कहने लगे उस्मान साहब आपको नहीं पता कुरान में नमाज फर्ज का ऐलान किया गया, बाकायदा आयत नाजिल हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात नमाज अता हुई है। मैं कहा यही तो मैं पूछ रहा भाई इतनी देर से। हाँ नमाज फर्ज है, अल्लाह ने फर्ज की, फर्ज तो है लेकिन क्यों की? तोहफे में मिली, तोहफे में तो मिली, क्यों मिली? अभी ये पंडाल लगाया तो ये टेंट वाले के पास गए होंगे, पंडाल लगाना है, उन्हें पूछा ना कादे ली क्यों? अब अगला पूछेगा ना भी क्यों, अगला समझे पता नहीं किसी की ताजियत का जलसा करना, शादी करनी है कि मेडिकल कैंप लगाना है, उसको बताओगे ना? अरे पूछेगा नहीं पूछेगा सामान देने वाला। तो मैं आपसे पूछता हूं, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं नमाज पढ़ते हैं, सारी दुनिया भी सुन रही, कमेंट में ही बता दो नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्यों का जवाब है नहीं। अब क्यों किसने जवाब देना था? क्यों का कलाम तो अल्लाह ने किया है हर जगह। फरमाया हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज की है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ए समझी जान दे पता नहीं नमाज इसलिए पढ़ते पे हैं कि बस जिन्ना पैसा अल्लाह को मंगी आ ही जाएगी, मुंडे मंगिए मुंडे आई जाए, कोठी मंगे कोठी आई जाए। पता ही नहीं नमाज पढ़ते की। अल्लाह ने फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की है ताकि तुम मुत्तकी। अब मुत्तकी किसको कहते हो जी? मुत्तकी कहते हैं नेक आदमी को। नेक कैसा होता है? ऐसा नहीं होता नेक जिसके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे 10,000 मित्र हो
اور ماں باپ کے ساتھ اس کی سلام دعا نہ ہو، آپ نیک کس کو کہتے ہو جی؟ آپ کے نزدیک کیا کریٹیریا نیک ہونے کا؟ جس کی زیادہ کوٹھی اچھی ہے وہ نیک ہے، جو جھوپڑی میں اپنے ماں باپ کے پیر دھوتا ہے روزانہ وہ نیک ہے؟ کس کو نیک کہتے ہو؟ بار بار بتاتے ہو کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں، نماز میں اتنے فرائض ہیں، ان کو یہ کون بتائے گا کہ ماں باپ کو گالی دے کے آنے والے کی نماز نہیں ہوتی؟ یار بالکل مطلب ہی بدل دیا سارے اسلام کا، بندر بانٹی کر دی پوری کی پوری، پھر روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا۔ ارے ہم نے اللہ کی سننی چھوڑ دی۔ نماز اس لیے فرض کی، اللہ چاہتے ہیں بندہ میرا متقی بن جائے، نیک بن جائے۔ پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں نماز کے متعلق؟ امام بخاری جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز نمازی کے درمیان اور گنہگار کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ دیانتدار ہوگا، جو نمازی نہیں ہوگا وہ دیانتدار نہیں ہوگا۔ تو پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہے؟ یہی پتا بھائی 33 مرتبہ 34 مرتبہ 35 مرتبہ، وہ تو اپنی جگہ جائز ہے، بات بالکل درست ہے، لیکن جو سجدہ بھائیوں کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ اپنی بیوی کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ اپنے پڑوسی کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ سود کا پروگرام دل میں لے کر، جو سجدہ کسی سے ٹھگی مارنے کا ارادہ دل میں لے کر اللہ کے حضور جو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کو بتاؤ کہ یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ کوسوں پیچھے چھوڑا ہے اس اسلام کو یار۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی ہو اور عزت دار نہ ہو؟ یہ تو دو متضاد باتیں یار، الگ الگ باتیں۔ ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہ دے۔ پتہ لگا یہ شکل سے ایمان والے ہیں، اندر سے ابھی کھوکھلے ہیں، ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ متقی بن جائے۔ نماز کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے۔ یہ فروعی مسائل ہیں، پاکی رکھنا، وضو کرنا، قبلے کی طرف کھڑے، یہ فروعی مسائل ہیں، مطلب سیکنڈ درجے کی باتیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا یقین اللہ پر کامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ اب پہلے والا جو ہے ہل گیا ہو، پہلی 5 سیڑھیاں 4 سیڑھیاں اس کی ٹوٹ جائیں کہ جی اوپر کیسے پہنچ جائے میرے بھائی۔ روزہ رکھ رہے ہیں، افطاریاں کی تیاری ہیں، وہ پاکستانی کی چٹکلا تو انہوں میں سنانا ہے۔ ایک بندہ روزے نہیں رکھتا تھا، کبھی نہیں رکھتا تھا، فیکٹری کا مالک تھا، فیکٹریوں تو رہا، فون کیتا کر اپنی بیگم نو، نا افطاری جج کی پربند کیتا ہے۔ کہہ لیں گے ہاں خان صاحب تم تو روزہ ہی نہیں رکھتے، کہنا کہ کافر سمجھے کہ افطاری بھی نہ کریے۔ یہی معاملہ یہاں بھی، ہماری حالت بھی یہی ہے۔ کہتا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، ان کے پاس مسئلے فتوے لوگوں کے لیے ہیں، مولویوں کے لیے فتویٰ ہے۔ مولوی کا بیٹا اگر نماز نہ پڑھے تو امامت سے اتر سکتا ہے، پردھان کا بیٹا اگر زناکاری بھی کرتا پھرے تو اس کی پردھانگی کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یار جو معاشرہ بددیانت ہو گیا ہو، میں صرف آپ سے نہیں گفتگو کر رہا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے گفتگو کر، جو معاشرہ بددیانت ہو گیا ہو اس حد تک، وہ پھر اللہ کی مدد کا منتظر ہے کہ کب اللہ کی مدد آئے؟ جو مدد کا تقاضا پورے نہ کرتے ہو۔ مسجد بنائی، اب پوچھو جی مسجد، جلندھر والوں کو تو خاص کر کہتا ہوں، آج سے کئی سال پہلے عید کی نماز میں ماشاءاللہ وہ گلے ملے ہیں اس طرح کی، وہ ہمارے بیٹے ہیں ذوالفقار بھائی کے پنجاب کیسری والوں نے سب گلے ملتے ہوئے کی خوبصورت تصویریں، ہماری بھی خبر نہیں چھپی اس دن، انہیں کی چھپے گی۔ مسجد کیوں بنائی؟
आप ये देखें ना, हमने कहाँ कहाँ इस्लाम को छोड़ा है। ये नहीं पता था नमाज क्यों पढ़ते, अल्लाह चाहते हैं कि मुत्तकी बन जाए। रोजे क्यों रखते हैं, अल्लाह ने फरमाया रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम्हारे गुनाह जड़ जाएं। ज़कात इसलिए ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। मस्जिद क्यों बनाई जी, अगर ये प्रधान जी बताएंगे मस्जिद कैसे बनेगी, कहाँ बनाएंगे, अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछ लो, जिनका दीन है उनसे भी पूछ लो, जो इस्लाम के मालिक है मालिकानू भी पूछ लो कि मस्जिद कैसे बनानी है, मस्जिद चलती कैसे है। मौलवी कहते हैं 5 नमाजें फर्ज हैं, वही 5 नमाजें बड़ी हैं। ये हजरत जी आए हुए जानसठ से मीरापुर से पूछो, इन 5 नमाजों से बड़ी एक नमाज है जिसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तहज्जुद की नमाज में इमाम चाहिए जी, वो बोल लो नहीं चाहिए, रोटी नहीं खवानी मौलवी साहब, नहीं चाहिए, कितने के मौलवी हो खवाती रोटी, फिर तो बोल देनी पे मैं था। भाई तहज्जुद के लिए इमाम चाहिए, नहीं चाहिए। अजान, तहज्जुद में अजान, मस्जिद में जाना है, ये तो मानते हो कि तहज्जुद इन 5 नमाजों से ज्यादा बड़ी है ना, फिर इन 5 के लिए इतना बड़ा सिस्टम क्या लगा है। अगर तहज्जुद इन 5 से बड़ी है, वो घर में हो सकती है, उसके लिए इमाम की जरूरत नहीं, उसके लिए मस्जिद की जरूरत नहीं, तो फिर ये जो इतना बड़ा हमने सिस्टम बनाया, जगह खरीदी, दीवारें की, बेहतरीन छत डाली, अच्छे मेहराब बनाए, आम घर से ज्यादा 20 गुना ज्यादा खर्चा होता है मस्जिद पे, पता है आपको, आम इमारत से 20 गुना ज्यादा खर्च होता है मस्जिद के मेंबरों मेहराब पे। वो क्यों बनाया भाई, अरे हमें तो पता नहीं क्यों बनाया, इतना पता है 5 टाइम नमाज होगी, एक प्रधान होगा, 20 मेंबर होंगे इसके, बाद में आराम से बिरयानी मंगा के खाएंगे इकट्ठे बैठ के, फिर देखेंगे अगले जुमे क्या करना है। मस्जिद इसलिए बनाई क्योंकि हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद बनाओ। अगर आप पूछें या रसूलुल्लाह क्यों बनानी है, इमाम बुखारी जवाब देंगे, इमाम नसई, इमाम अबू दाऊद, तमाम बड़े इमाम जो हैं, हम पूछते हैं रसूलुल्लाह से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वो बताते हैं। हम पूछेंगे क्यों बनानी है, तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्जिद इसलिए बनाई ताकि तुम जमात के साथ नमाज अदा करो। फिर अगर पूछें या रसूलुल्लाह जमात के साथ क्यों, कैसे नमाज पढ़नी है, फिर इमाम बुखारी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि कंधे से कंधा मिला के नमाज अदा करो। पूछें कंधे से कंधा क्यों मिलाएं, इरशाद होता है ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। सुभान अल्लाह। अब मैं पूछा करता हूं इन मुसलमानों को कि जिस रसूल ने इसलिए मस्जिद बनाई कि नमाज तो घर में भी हो सकती थी, नमाज तो छुप के अगर पढ़ी जाए तो ज्यादा फजीलत वाली है, ये अजान के साथ मस्जिद इसलिए बनाई, ये जमात इसलिए कायम की ताकि तुम इत्तफाक की दौलत से मालामाल हो जाओ। अब जिन नमाजियों को यही पता ना हो कि दाएं कौन खड़ा होता है बाएं कौन खड़ा होता है, 5 नमाजें 5 जमातें इसलिए कि फजर में अगर आबिद सलमानी नहीं आए, जोहर में नहीं आए, असर में नहीं आए, मगरिब में नहीं आए, तो ईशा में जब्बार भाई अब्दुल बारी घर जाएंगे पूछने कि मियां आज कहां रह गए, परेशान होगा तो कहेंगे हम तेरे साथ हैं, डरता क्यों है। इनको पता ही नहीं है कि मस्जिद बनाई क्यों, ये तो अपनी ईरान तुरान की मारते हैं कि हाँ जी मस्जिद के अंदर फलां के लिए पंखा चलेगा, फलां के लिए नहीं चलेगा, फलां के लिए ये होगा, फलां के लिए वो नहीं होगा। क्या बातें मियां तुम्हारी। मस्जिद तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बनाई कि एक खूबसूरत समाज तैयार करना है, और इत्थे की है एक खूबसूरत बरादरी तैयार हो रही है जिसका इरादा है कि दूसरे का रगड़ा लगा के रखना है। ऐसी मेरे पास 1000 बातें मेरी नहीं है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। हम इस्लाम को कोसों दूर छोड़ाए। एक बात याद रखो, वक्त भी बहुत हो गया है, इस्लाम फतवों में नहीं मिलेगा, मसलों में नहीं मिलेगा। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी पैदाइश से लेके आखिरी वक्त तक रसूलुल्लाह की सीरत पढ़िए, आपको मसले भी समझ आ जाएंगे, फतवे भी समझ आ जाएंगे, लेकिन आपको असल में इस्लाम समझ आ जाएगा कि इस्लाम आपसे क्या चाहता है।
क्योंकि जब रसूलुल्लाह को पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो इसीलिए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा दीन हमें अता फरमाया जो लोगों को इज्जतें बांटने आया, लोगों से मोहब्बतें बांटने आया, जिसने छुआछूत का खात्मा किया, जिसने गरीब को अपने गले के साथ लगाया, जिसने काले और गोरे के फर्क को खत्म किया, तभी तो पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा है ना जी। हमारे तो जेड़ा गोरा चिट्टा जम पवे ना, वो जी मैं तो सैयद हाँ। कितने ऐसे होंगे हिंदुस्तान में जिनकी मदीने में रिश्तेदारी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन फितरत का दीन है। ये इज्जत हमारे सर पर रसूलुल्लाह ने रखी है। हम तो बहुत दबे हुए लोग थे, हम तो माशरे में बहुत नीचे थे, हमारा कोई मुकाम नहीं था। ये तो रसूलुल्लाह ने जब इस्लाम की इब्तिदा की, जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ने ये कहा कि हम अल्लाह को मानते हैं और आपको अल्लाह का रसूल मान लिया, हमारे बीच पीर तरीक़त आरिफ बिल्लाह हजरत अक़दस हुसैन अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के लिए एक मरतबा नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इब्तिदा में यह कह दिया ना, बिलाल अबू बकर के भाई हैं, बिलाल हबशी हैं, गुलाम हैं, काले हैं, और अबू बकर जो हैं मक्के के शहजादे हैं, तो दुनिया को हम जैसे जो लोग थे, पूरी दुनिया में जो दबे हुए लोग थे, गरीब लोग थे, पूरी दुनिया में जो लोग जुल्म के अंदर पिस रहे थे, जो इंसानों को, जिन इंसानों ने गुलाम बना रखा था, जिनके पाँव में बेड़ियां थीं, ये इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा। जब ये तूफानी पैगाम गया ना कि एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत रसूलुल्लाह की रिसालत के साथ तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा मिल गया है, तो देखते ही देखते पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम पहुंच गया है। अब मजे की बात तो ये है, जिनको ठेका दिया इंसानों की बराबरी का, जिनको चौधरी बनाया कि तुमने गरीब को साथ में लगाना है, उन्हीं के घर में अगर छुआछूत होने लग पड़े तो वो पता नहीं अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अगर किसी मुसलमान को एक गलत फहमी है कि मैं किसी हिंदू का जूठा पानी नहीं पी सकता, किसी सिख का नहीं जूठा खाना खा सकता, अब तो चलो कोरोना है तो कोई बात नहीं, परहेज कर रहे हैं, लेकिन मसलन इस्लाम ने, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इंसान का जूठा पाक है ताकि ये आपस की नफरत जो है खत्म हो सके। अब चंगे चंगे हम तो कहते नहीं जी, हमारी बरादरी में ही शादी होगी और कहीं हो नहीं सकती। उस इस्लाम को तलाश करें। ये अफसानवी बातें, दूसरों को भी खुश करना, खुद भी खुश हो जाना, हकीकत से आंखें चुराना, आंखा बंद कर लेनी या कबूतर की तरह कि अच्छा बिल्ली निकल गई होगी, ना, ये इस्लाम नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस मस्जिद नबवी में तहज्जुद पढ़ी, जिस मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के वाज किया, उसी मस्जिद नबवी से मैदान बदर के लिए निकले, उसी मस्जिद नबवी से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनों की मदद फरमाई, उसी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के घरों में खाना पहुँचाया, उसी मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचायतें की हैं। मस्जिद को सिर्फ अगर इबादत की जगह समझ लिया, बाकी तमाम वाक़यात मस्जिद से काट दिए, यहीं पर आके हमने अपने हाथ से इस्लाम को अलहदा कर दिया। हम तो वो बातें करते हैं कि जिनका वक्त के लिहाज से कुछ लेना देना ही नहीं है हमसे। मैं अभी दिल्ली गया था तो वहाँ किसी का इंतकाल था, तो वहाँ नमाज पढ़ी एक मस्जिद में जुमे के दिन। अब उन्होंने माशाल्लाह अजाब कब्र पे 2 घंटे बाद सुनाई। मैं क्या मौलवी वो जेड़े जिंदा है इन्होंने तो बचाने की गल कर ला कोई। इनको भी ये बैठे सारे लीडर, अब्दुल बारी बैठे हैं, ये जब्बार भाई बैठे हैं, आबिद सलमानी साहब बैठे हैं। पूछो, मैंने इलेक्शन से पहले सबको लुधियाना बुलाया और सारी पार्टियों को कहा, मैं कहा तुम बार बार कहते हो कब्रिस्तान देंगे, मैं कोई जिंदा लोगों को भी दे दो। याद है ये आपको? मैं कोई स्कूल कॉलेज की देने की भी बात कर लो, तो मान लिया कब्रिस्तान जरूरत है, तो जो कुछ देना मरने पे ही देना है, जिंदगी का कुछ नहीं। शरीयत में लिखा है कि जुमे के खुतबे में, इमाम बुखारी में बाकायदा हदीस दर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जुमे के खुतबे में जब पहली दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे तो ये बात करते थे कि मदीने के गली कूचों में क्या बात हो रही है,
कौन सा दुश्मन हम पर हमलावर होना चाहता है, किसने हमारी इक्तिसादियात को नुकसान पहुंचाने की बात की है, कौन हमारी मुखालफत करने के लिए आगे बढ़ता है, किसको कैसे रोका जाएगा, मुसलमानों को माशी तौर पर कौन सी तंगी है, हमारी तालीम का निज़ाम किस जगह और बढ़ाना चाहिए, कहाँ मुबल्लिग और बेचने हैं। ये पहले खुतबे की बातें जब बैठ के दोबारा उठते थे तो फरमाते थे नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, गुनाहों से बचना है। तुमने तो पहली बात ही खत्म कर दी, बस दूसरी पे टिक गए जाके। सुना किसी खुतबे में जो कहता हो कि फला पंगा पड़ा हुआ है इस वक्त मुल्क में, हमें फला चीज इस्लाम के मुताबिक करनी चाहिए, हुकूमत के सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखनी चाहिए, हमें जाके अपनी बात करनी चाहिए। वो नहीं 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 नहीं, ये मस्जिद का काम नहीं है, मौलवी का काम नहीं, ये चौधरी करेंगे। तो चौधरी बोल दे कोई नहीं सरकार के सामने जाके, साडा पेट्रोल पंप लवा दो, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सब। इस्लाम को मजहब बनाने की कोशिश मत करें। ये दीन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मजहब सिर्फ इबादत का तरीका होता है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है। इसको दीन रहने देंगे तब हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तब हम तरक्की कर सकते हैं। अगर दीन में हम अपना मिजाज शामिल करेंगे तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। मेहमान आ गए, हमारे अकाबिर तशरीफ़ ले आए हैं। हम तो आपके सूबे के रहने वाले हैं, इस शहर में भी हमारी रिश्तेदारी, हमारा आना जाना लगा रहेगा। मेहमानों को सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो मैंने मुख्तसर सी बातें आपको की हैं उनका मकसद खुदारा आपसे ये है कि एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दो खुदा के वास्ते। इस्लाम और मिल्लत इस्लामी और इस मुल्क के मफाद के लिए आप क्या कर सकते हैं वो कर लो। गीबत से बच जाइए, खुद पसंदी से बच जाइए, अल्लाह आपको इज्जत देंगे। अगर कोई आपको नाराजगी है ना, किसी से आपको किसी से नाराजगी है ना, और रोज सोचते हो अच्छा इसने मेरी इज्जत नहीं की, एक दफा रात को बिस्तर पे लेट के कभी ये भी सोच लो कि मेरी जुबान से कौन कौन तंग है, कि मेरे रवैये से क्या मेरा बाप दुखी है, मेरी बीवी परेशान है, मेरे बच्चे मुझसे खौफजदा है, मेरा पड़ोसी मुझसे दहशत खाता है, मेरा मुलाजिम मुझसे तंग है। वो कभी इधर भी मारो चाहती। मैं अक्सर जाता हूँ, परसों नरसों में टांडे में था एक जगह, निकल की बात है, पटियाले की नहीं, बठिंडे की के पास की। तो मैंने वहां पूछा, मैं कहा अगर हम तबलीग शुरू करें, दीन की तबलीग शुरू करें अगर, तो कहां से करेंगे जी? दीन की तबलीग शुरू कहां से करनी चाहिए? घर से करनी चाहिए ना भाई। वो बोल लो, सामने ही बैठे, घर से शुरू करें। अभी एक साहब ने मशवरा दिया मस्जिद से, चलो घर से करते हैं। भाई तुम बताओ, घर से करें तो घर में किस बंदे से करें? बीवी से, माँ से, बाप से? किससे शुरू करनी चाहिए? अपने आप जी, अपने आप से। परसों पतंदर मैनू कहना तो आपने भी वही था, हम तो कई ने पहले सुन लिया। परसों एक पतंदर कहता जी अपनी माँ से शुरू करूँ। मैं सुभान अल्लाह, क्या समझे भी? तुम माँ से शुरू करोगे तबलीग? अल्लाह के बंदे इस दिल से शुरू करें, अपने अंदर से। हमसे कौन कौन दुखी है, बस आप ये पता कर लें कि आपसे कौन कौन दुखी है, तो वो भी सुखी हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल क़ारी ग़िलमान संबरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।